Yes, good morning, Harshit. Good morning, Shriya. Good morning, sir. On the last lecture, we have focused on a very key topic. And we discussed two examples related on the merge operation. So first we will go through what we have covered earlier, and then we will discuss the new topic. कर दे बंद. Yes, but a camera on kar lo, camera like only 2 students. So yes, in the last lecture, I think Shriya was not there. Yes, भव्या इसको करो, हल्का से रिवाइज करो इसको, मर्ज ऑपरेशन को. Merge operation is used to join the two different data frames, and it requires something common, like a common attribute is necessary for this. Clear. And merge and join, both are quite similar to each other. So this was the example that we took last time. Dictionary 1 we created, then dictionary 2 we created, then we basically concatenated in this. After converting them into a data frame, we have converted it to a we have concatenated both the these data frames. Then we have one more data frame, that is this converted from dictionary 3. So that is df4, and what we did on the df4 after converting dictionary 3 to data frame 4, we basically merged data frame 3 and data frame 4. Clear. And as already described by Bhavya, that is we needed some common attribute on which we are merging two data frames. So like here in this particular example, we have taken this id as the common attribute on which we are merging df3 and df4, and then we get a resultant data frame, that is the df5. So the result we will get here, and we also practically implemented this example. Clear. So this was the example that we have implemented last time. Clear. Dictionary 1, then dictionary 2, then we have dictionary 3 converted into data frame. All the 3 dictionary converted into data frame, then 1 and 2 data frame concatenated together, and then later on just yes, in line number 16 we basically merged together these data frames based on the common attribute id. Clear. So here you can see this was the data frame basically after concatenating df1 and df2. This was the df, its name was df4, और next ये था हमारे पास df3. अब इन दोनों को क्या किया हमने, मर्ज किया है based on the id attribute, and this is the resultant attribute we have, the resultant data frame we have after the merge operation. Clear. So the only thing that is different in merging is there. For merging we need something common to merge two data frames, but that is not the precondition in a concatenation operation. So concatenation is basically operation is divided into two parts. One is called the outer concatenation, and the second is inner concatenation. So yes, अजय प्रताप बताओगे डिफरेंस दोनों में, आउटर और इनर कंकैटिनेशन में क्या डिफरेंस है? सर मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है. ठीक है. So yes, हर्षित.
Same question is transferred to Harshit. सर मेरे को भी थोड़ा हाँ ठीक है. Yes, Shriya. So outer concatenation, it performs union operation, and inner concatenation, it performs intersection operation. हाँ, तो ये तो सेम ही रहना. whatever we have explained 2 days back, the answer will remain the same. The outer operation basically represents the union operation, and the inner operation basically inner concatenation that represents the intersection, means the common part. So now we move to the today's task. So this was the one more example we have. इसमें क्या था? That is right on. This right on and left on, these are the two sorts of merge operations we have. Now what is the meaning of this right on if we apply the right on merge? So you can see here, it might happen that a column on which we merge the two data frames may have different names. So in certain scenario, the example that we took, there was a common attribute. But in certain scenario, if let's say on the attribute on which we are merging two data frames, clear? So we may have different attributes also. So in that case, we'll be using this right on or left on merge operation. अब ये right on में क्या होता है? For such merge, if you have to specify the arguments left on as the left data frame. So if we are applying जो पहला data frame है उसको left data frame लेके चल रहे हैं, so then we will work as a left on data frame and right on as the right data frame. तो ये basically हमने mention करना है कि हम left on से merge कर रहे हैं या right on से merge कर रहे हैं. Clear? So इस केस में तो हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा, बिकॉज द की थिंग इज देयर दैट वी हैव ए कॉमन एट्रीब्यूट है. तो अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हम जो ये पैरामीटर जो है राइट ऑन, अगर हम इसके अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, वी कैन सी जो लास्ट एग्जांपल में हमने किया था. सो दैट इज द एट्रीब्यूट का नाम है हमारे पास राइट ऑन, एंड राइट ऑन किस एट्रीब्यूट के ऊपर अप्लाई करना है? ID. And when we go with this one, it will take few seconds. So right on or left on case we have to apply when we don't have a common attribute. तो उस केस में हमें ये right on को activate करना है. So we got some error here. Merge error can only pass argument on can एक ही आर्गुमेंट हमने पास किया था. सर ऑन की जगह लेफ्ट ऑन आना चाहिए. हाँ जी, ऊपर ऑन की जगह लेफ्ट ऑन आना चाहिए. अच्छा यहाँ पे एक मिनट. हाँ एक्चुअली राइट ऑन और दूसरा ठीक है. ठीक, ये पैरामीटर हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है. ठीक है, जब हम राइट ऑन अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ऑन का तो फिर पर्पस खत्म हो गया. स्टिल ऑन राइट ऑन, अब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट टाइप
राइट ऑन के स्पेलिंग ठीक है? राइट ऑन आईडी, इसको कोर्स में तो नहीं रख दिया हमने? स्पेलिंग तो ठीक है। डीएफ लेफ्ट ऑन करके देखें इसमें। Error Sir, type I is think we have to object use of both. type. हाँ जी, Sir, I think we have to use both right on and left on simultaneously. इस क्वेश्चन में तो उसकी आउटपुट में डिफरेंस आएगा नहीं, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन ए कॉमन एट्रीब्यूट। यस यस, इस आउटपुट में तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, बिकॉज नो इसके बिना भी राइट ऑन एंड लेफ्ट ऑन, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन ए कॉमन एट्रीब्यूट इसके अंदर। और ये जो राइट ऑन, इसकी एग्जांपल लेते हैं, दैट इज विल टेक अप। इस एग्जांपल में क्या था, लुक एट दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में क्या है, आईडी हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट है, तो इसकी सेम ही आउटपुट आएगी एज इट वाज कमिंग इन दी अर्लियर। ठीक है, बिकॉज इस एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 में बोथ वी आर गेटिंग द सेम सॉर्ट ऑफ आउटपुट। द ओनली रीजन इज देयर दैट इन द बोथ द केसेस वी हैव कॉमन एट्रीब्यूट। बट ये राइट एंड लेफ्ट ऑन का कहां पे यूज होना था, वेयर वी डोंट हैव ए कॉमन एट्रीब्यूट ऑन विच वी आर गोइंग टू basically are joining two data frames. So next question start करते हैं, मे बी ये next में आ जाएगा ये टॉपिक। Now the next operation is basically join operation in a data frame. So next is full outer join. Now question arises, what is this full outer join is? The full outer join combines the result of both the left and the right outer joins. तो ये ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर था, एक लेफ्ट आउटर जॉइन होता है, एक राइट आउटर जॉइन होता है। ठीक है जी। सो द जॉइंट डाटा फ्रेम विल कंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द डाटा फ्रेम्स एंड फिल। अगर किसी के कॉरस्पॉन्डिंगली कोई वैल्यू अनफिल्ड है तो उसको एज ए क्या फिल कर देगा, एज ए नॉट ए नंबर। सो विल टेक दिस एग्जांपल, इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो हाउ दिस आउटर जॉइन वर्क्स। ठीक है, इन क्वेश्चंस की क्लैरिटी तभी होगी व्हेन वी आर बेसिकली टेकिंग अप द एग्जांपल्स, अदरवाइज ये थ्योरेटिकली थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये सारा। सो ठीक है जी, एक इसकी एग्जांपल लेते हैं। pandas as pd and we have dictionary 1. First attribute is id and values are 1 2 3 4 5. Second attribute is value 1. AC because earlier we have not basically worked on the values.
ACE G and last one is I. Next we have one more attribute is value 2. And the values are here BDF. And H and J. So this is the dictionary one. We'll copy paste this one and make it a dictionary 2. Then the values are 2, 3, 6, 7, 8. Then is value 1 is KMO. Means these values are different. Earlier we were taking the values randomly. Next is LN. PRT. ठीक है जी. Yes, अजय प्रताप. Yes, sir. अजय प्रताप, दोनों डिक्शनरी को कन्वर्ट करना है डाटा फ्रेम में, कैसे करूंगा? सर वही यूज करेंगे जो वही यूज करना है, वो बताना आप. हाँ जी, हाँ जी, बोलोगे? सर मर्ज ऑप्शन यूज कर सकते हैं. यार मेरा क्वेश्चन तो सुन ले. मेरा क्वेश्चन है दोनों डिक्शनरी को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है. मर्ज पे कहां पहुंच गए अभी तुम? अभी तो हम इंटरमीडिएट स्टेप के ऊपर है. यस नवदीप. df is equal to pd dot data frame bracket dictionary one. Yes, yes. Navdeep is in good form today. दो डाटा फ्रेम हमने क्रिएट कर दिए. ठीक है जी. अब हमारे पास दोनों को पहले एक बार प्रिंट करवा लेते हैं. We are able to see what is there in the both the data frames. ठीक है. तो ये है हमारे पास these are the three attributes and their index values of the both the data frames. Now we are going to work on the join operation. अब join operation में क्या है हमारे पास? सबसे पहले है कि किस attribute के ऊपर हमने join करना है. Again join and merge दोनों काम करते हैं. Both of these attributes or functions works based on the common attribute. ठीक है. तो इसको चाहे कॉमन है या नहीं है बेसिकली, बट आउटर जॉइन सॉरी जो कंकैटिनेशन था उसके अंदर तो कुछ भी कॉमन रिक्वायर्ड नहीं था, बट मोस्टली मर्ज एंड जॉइन दे बेसिकली आर जॉइंट कीपिंग इन माइंड द कॉमन एट्रीब्यूट. क्लियर? सो फर्स्ट वी वर्क ऑन दी what we want to do. We create a third data frame df3
is equal to PD dot merge. We want to merge df1 and df2 and on the attribute is id. इतना करके देखते हैं तो on id what is the result is here id again it should be in capital. ठीक है जी, ये आ रहा है हमारे पास वैल्यू 1 एंड इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा, अभी तो हमने आउटपुट तो ली नहीं. प्रिंट df3. ठीक है जी, तो इस तरह का आ रहा है. इसको कोई इलैबोरेट कर सकता है? दोनों डाटा फ्रेम को देख के मैं df1 की आउटपुट देखना, df2 की आउटपुट देखना और फिर देखना ये किस तरह का हमारे पास रिजल्ट आ रहा है. So the common rows are displayed. यस यस यस. तो बेसिकली मर्ज ऑपरेशन और जॉइन ऑपरेशन दोनों की बेसिक प्रॉपर्टी जो है दैट इज दे वर्क ऑन द कॉमन एट्रीब्यूट. अब कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है? आईडी. अब उसके अंदर उसने कॉमन वैल्यूज पिक कर लिए. 2 and 3 इज हियर आल्सो, 2 and 3 इज हियर आल्सो. और 2 and 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये कौन सी वैल्यू हमारे पास? CEDF फ्रॉम दी फर्स्ट. ये जो सफिक्स आ गया नीचे _x, ये सफिक्स क्या मेंशन कर रहा है कि these are the values from the first data frame and _y means that these are the values from the second data frame, km and ln. Clear? Now question is, now in this particular merge operation we have certain missing values. Clear? Certain values are there in this join operation which has not been represented. If we want to represent those values, now I want to go with this how I want to join these two with the outer join. So this how parameter will come here, how I want to merge these ones. Is outer. So now you find कि जब मैं देखो इसमें देखो जब मैं फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करता 1 1 एंड AB, इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास सेकंड डाटा फ्रेम में. 1 के कोरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू है नहीं है, तो उसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया है? NaN से. ठीक है. नाउ व्हेन आई मूव टू 4 and 5, इस रो में अगर मैं 4 इस डाटा फ्रेम में 4 5 देखूं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू नहीं है, आईडी नहीं है इन दी सेकंड डाटा फ्रेम. ठीक है जी. तो 4 5 के अगेंस्ट क्या आ गया? 4 5 के अगेंस्ट आ गया NaN. ठीक है, क्लियर. और अगर मैं सेकंड डाटा फ्रेम में देखूं तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, लेकिन ये 6 7 8 कॉमन नहीं है. तो 6 7 8 फर्स्ट में नहीं है, तो जो फर्स्ट में मिसिंग है उसको मैंने किससे, वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएंगे विद NaN. दिस इज कॉल्ड फुल आउटर ज्वाइन. और अगर हम जो पहले हमने जो ज्वाइन किया था हाउ के बिना किया था, उसको कोई बता सकता है वो कौन सा ज्वाइन था? Inner. हाँ जी. Inner. यस यस यस. सो भव्या इज ऑन द राइट ट्रैक. दो तरह के ज्वाइन होते हैं, इनर ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन. तो इनर ज्वाइन में क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑपरेशन होता है. तो सिंपल सी बात है, पहला डाटा फ्रेम और दूसरे डाटा फ्रेम में जो आईडी एट्रीब्यूट के साथ जो कॉमन वैल्यूज थी उसको उसने रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, क्योंकि हम जो इनर ज्वाइन कर रहे थे वो आईडी एट्रीब्यूट के ऊपर कर रहे थे. तो आईडी में जो कॉमन था उसने फर्स्ट डाटा फ्रेम से भी ले लिया, सेकंड से भी ले लिया, एंड दैट्स हाउ द इंटरसेक्शन ऑपरेशन इज डन. क्लियर. बट व्हेन वी गो टू द आउटर ऑपरेशन, तो उसमें हमने क्या किया था? आउटर के बारे में हमने पढ़ा था कि आउटर इज बेसिकली द यूनियन ऑपरेशन.
सो यूनियन ऑपरेशन में क्या था कि पूरा का पूरा डाटा फ्रेम 1 भी रिप्रेजेंट होगा और पूरा का पूरा डाटा फ्रेम 2 भी रिप्रेजेंट होगा। तो डोंट गेट बेसिकली मेमोराइज दीज थिंग्स, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि इनर में क्या होता है इंटरसेक्शन ऑपरेशन है, आउटर में क्या होता है यूनियन ऑपरेशन है। अगर आप बहुत ज्यादा यू वांट टू, अगर आप इन कंसेप्ट को मेमोराइज करने की कोशिश करोगे, सो वी विल गेट कंफ्यूज। सो वी ओनली नीड टू बेसिकली वर्क ऑन दी कंसेप्ट। सेम कंसेप्ट है ये जॉइन ऑपरेशन MySQL में भी आएगा। मैंने आपको बताया था उसमें इनर जॉइन का दूसरा नाम होता है नेचुरल जॉइन। तो नेचुरल जॉइन बेसिकली टेक वर्क्स ऑन दी, यू कैन से दी इंटरसेक्शन ऑपरेशन। एंड अगेन उसमें आउटर जॉइन फिर दो तरह के होते हैं। आउटर जॉइन आर ऑफ टू टाइप्स, राइट आउटर जॉइन एंड लेफ्ट आउटर जॉइन। तो पहले तो हमें आउटर जॉइन क्लैरिटी होनी चाहिए, देन वी कैन फोकस ऑन कि लेफ्ट आउटर जॉइन का क्या मीनिंग होता है और राइट आउटर जॉइन का क्या मीनिंग होता है। सो दी बेसिक थिंग ये है कि अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है, सो देन यू विल बी एबल टू गो थ्रू सच कंसेप्ट्स। अगर हम कंसेप्ट को छोड़ के कोडिंग में फंस जाएंगे कि ये कैसे हो रहा है, पहले तो कंसेप्ट पता होना चाहिए, देन वी नीड टू गो फॉर द कोडिंग पार्ट। ठीक है, तो इस तरह की आगे एग्जांपल आ जाएगी। और ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, अब हमारे पास ये आ गया लेफ्ट ऑन आईडी, राइट ऑन आईडी, हाउ आइटर जॉइन एंड सफिक्स इसने मेंशन कर दिए कि पहले डाटा फ्रेम को रिप्रेजेंट करना है विद लेफ्ट और दूसरे डाटा फ्रेम को रिप्रेजेंट करना है विद राइट। ठीक है, एक तो ये भी कंफ्यूजन होगा कि हम लेफ्ट किसको ले रहे हैं और राइट किसको ले रहे हैं। सो ही हैज स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि जहां जहां पे फर्स्ट डाटा फ्रेम का यूज होगा वहां पे लेफ्ट लिखा जाए और जहां पे दूसरा डाटा फ्रेम है वहां पे राइट लिखा जाए। सो द कंफ्यूजन इज गॉन फ्रॉम दिस। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर और पहले क्वेश्चन के अंदर कोई आउटपुट में डिफरेंस है? Only in place of X it is left and in place हाँ, of Y it is और right. बस सफिक्स में डिफरेंस आया है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। व्हाई? बिकॉज हमने लेफ्ट ऑन भी कर दिया है, राइट ऑन भी कर दिया है। अगर लेफ्ट ऑन राइट ऑन इकट्ठे हैं तो इट मींस दैट इज ए सॉर्ट ऑफ ए फुल आउटर जॉइन ही बन जाएगा वो। एग्जांपल 2 मेंशन की हुई है, बट नाउ यू कैन सी हियर इन द आउटपुट पार्ट। सीधी सी बात है, यहाँ पे आप ये आईडी एट्रीब्यूट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चल रहा है, तो वैसे इसमें चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लेफ्ट एंड राइट बोथ आर परफॉर्म्ड इन दिस ऑपरेशन आल्सो, एंड राइटली सेड बाय भव्या कि इसमें सिर्फ सफिक्स का डिफरेंस है, बाकी कुछ और नहीं है। तो हम भी इसके अंदर ये कौन सा है, एक हम लेफ्ट रख लेते हैं और दूसरा अंडरस्कोर राइट। इट्स देयर इन कोट्स में था ये Yes, sir. ठीक है, सो इट्स देयर इन कोट्स। ठीक है, तो आउटपुट पार्ट में वी कैन सी दैट दी बाय डिफॉल्ट तो वो एक्स वाई से शुरू कर देता है, एंड वी कैन रिप्लेस देम विद दी सफिक्सेस आल्सो। मूविंग टू द एग्जांपल पार्ट। ठीक है, अब आ गया फिर से हमारे पास इनर जॉइन। सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इनर जॉइन की। इनर जॉइन प्रोड्यूस ओनली दोज रिकॉर्ड्स
that match the both the data frames, so you have to pass the inner in how argument inside the merge. So ठीक है कि उसी मर्ज के अंदर हमें मेंशन करना पड़ेगा। अगर हम इनर मेंशन कर देते हैं तो वो इनर का काम कर रहा है, क्लियर, और अगर हम आउटर कर देते हैं तो वो आउटर के फॉर्म में काम करेगा। सो लेट अस से वी हैव द सेम एग्जांपल इज देयर एंड वी नाउ रिप्लेस outer with inner. So when we run this code, so what we see in the output part, now only the common values are displayed here, rest of the values are gone out to that. ठीक है जी, and now the next is, अगर हम इसी क्वेश्चन को राइट जॉइन से करते हैं, सो लेट्स से हाउ इज, ठीक है, अभी तक हमने दो जॉइन के ऊपर फोकस किया है, आउटर जॉइन एंड इनर जॉइन। नाउ वी मूव टू दी राइट जॉइन, ठीक है। तो भव्या बताएगी, भव्या राइट जॉइन से होगा क्या? समय भी जो हमने राइट वाला लिया है, मींस यहाँ पे डाटा फ्रेम 2 का डिस्प्ले होगा। ठीक है, आई एम नॉट श्योर। बेसिकली चलो इसको that's a good you are not sure about this, admitting for that. Now the question arises, सबसे पहले तो हमें लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो जब भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, एक डाटा फ्रेम को हम अज्यूम करके चल रहे हैं लेफ्ट साइड पे, दूसरे डाटा फ्रेम को लेके चल रहे हैं हम राइट साइड, ठीक है जी। जैसे हम कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन सिंबल के लेफ्ट पे ये वाली वैल्यू है, राइट पे ये वाली वैल्यू है। नाउ वी आर टेकिंग अप कि जब भी ये ऑपरेशन होगा वो सेकंड डाटा फ्रेम की साइड से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास सेकंड डाटा फ्रेम है, ये काम करेगा एज ए, यहां से होगी मल्टीप्लिकेशन, राइट जो है राइट साइड से, जो राइट डाटा फ्रेम से होगा। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा कि राइट की सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट हो जाएगी वहां पे, ठीक है। नाउ यू सी इन दी आउटपुट पार्ट, ठीक है, कि जब भी हम राइट साइड से आउटर ज्वाइन करेंगे ना, तो राइट की सारी वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएंगी, लेकिन लेफ्ट की सिर्फ कॉमन वैल्यू वहां पे डिस्प्ले होंगी, ठीक है। और अगर हम इसी ऑपरेशन को लेफ्ट आउटर ज्वाइन से करते तो लेफ्ट डाटा फ्रेम की सारी वैल्यू रिप्रेजेंट हो जानी थी, राइट की सिर्फ कॉमन वैल्यू रिप्रेजेंट होनी थी, ठीक है। थोड़ा क्लियर है भव्या इसमें अब? यस सर। ठीक है, लेफ्ट और राइट में देखो सिंपल सी बात है, इनर जॉइन में सारी वैल्यू आ जाएंगी, इनर वैल्यू में कॉमन वैल्यू आएंगी दोनों डाटा फ्रेम्स की, आउटर में सारी वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएंगी। और लेट्स से पहले डाटा फ्रेम को हम लेफ्ट लेके चल रहे हैं, दूसरे डाटा फ्रेम को हम राइट लेके चल रहे हैं। अगर हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन करते हैं तो लेफ्ट में क्या होगा कि पहले डाटा फ्रेम की सारी वैल्यू रिप्रेजेंट होगी और राइट की सिर्फ जो दोनों में कॉमन है वो वाली वैल्यू रिप्रेजेंट होगी। अगर हम राइट आउटर ज्वाइन करते हैं तो राइट की सारी वैल्यू रिप्रेजेंटेशन होगी रिजल्टेंट में, लेकिन लेफ्ट की जो वैल्यू कॉमन नहीं है दे विल नॉट गेट रिप्रेजेंटेड ओवर देयर। तो द क्वेश्चन इज सेम नाउ, ठीक है। अब ये हमने नाउ लेट्स से मूव विद द राइट आउटर ज्वाइन। तो राइट में देखो ये जो दूसरा डाटा फ्रेम है इसके ऊपर कंसंट्रेट करो, इसकी सारी वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन फर्स्ट की जो कॉमन नहीं है, जैसे ये 1 नहीं है कॉमन और 5 नहीं है, 4 नहीं है, तो ये वैल्यू नहीं आ रही वहां पे रिजल्ट में। और अगर मैं इसी को लेफ्ट में कर दूं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन कर दूं, तो फर्स्ट की सारी वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएंगी, फर्स्ट डाटा फ्रेम की सारी रिप्रेजेंट हो जाएंगी, राइट की जो कॉमन नहीं है दे विल नॉट गेट रिप्रेजेंटेड। सो व्हेन आई रन दिस वन, तो एक ही एग्जांपल से ये सारे केस जो हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। सेम तरह से सेम मैकेनिज्म से टेबल्स में भी लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन होता है हमारे पास, ठीक है।
ये बेसिकली कंसेप्ट जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली इनका यूज जो है दैट्स दैट दे आर नॉट वेरी मच प्रैक्टिकली यूज्ड इन एप्लीकेशन, बट हमें कंसेप्ट वाइज क्लियर होना चाहिए कि आउटपुट कैसे आ रही है. द कंसेप्ट शुड बी क्लियर टू अस. तो वन एग्जांपल इज मोर देन सफिशिएंट टू इंप्लीमेंट ऑल द कंसेप्ट्स इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन एंड राइट आउटर जॉइन. तो इसको हम मर्ज फंक्शन से भी कर सकते हैं, एंड समवेयर यू विल फाइंड मर्ज ऑन जॉइन, both are the merge से ही किया है इसने, and I think join is also somewhat same. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल में ये लेफ्ट आउटर जॉइन किया है, कुछ भी नहीं है, तो लेफ्ट में पहला सारा डाटा फ्रेम रिप्रेजेंट हो जाएगा. ठीक है. और जो पहले के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड में वैल्यू नहीं होगी उसके अगेंस्ट एन आ जाएगा. ठीक है. कईयों को ये कंसेप्ट ये joining on index that we will not touch today. ठीक है. बेस्ट मैकेनिज्म इसका यही है that if we practice, ऐसा जय प्रताप, सबसे पहले तो ये है कि हमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के ऊपर फोकस करना चाहिए. सबसे पहले तो हमें डाटा फ्रेम तक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एंड देन आप इसको ग्रेजुअली प्रैक्टिस करो कि आउटर जॉइन से क्या होता है, इनर जॉइन से क्या होता है. आउटर जॉइन इज द यूनियन ऑपरेशन अमंग टू डाटा फ्रेम्स एंड इनर जॉइन इज द इंटरसेक्शन ऑपरेशन. और अगर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैथमेटिकल कंसेप्ट से भी करेंगे, सो नो देन अगेन यू विल बी हैविंग a greater degree of clarity. फिर भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, वी कैन टेक अप मोर एग्जांपल्स आल्सो, बट पहले आपको थ्योरेटिकली कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एंड देन यू फोकस ऑन दिस टॉपिक. कोई आपकी साइड से कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस वन? ठीक है. तो अगर हम इसको, इन चीजों को अगर हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके हम आउट ऑफ टच हो जाएंगे, एंड द थिंग्स विल बिकम ऑन द डिफिकल्ट साइड. फिर हमें प्रोजेक्ट में भी डिफिकल्टी आएगी कि सर प्रोजेक्ट कैसे बनाना है. तो इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है अगर हम प्रैक्टिस करेंगे. सो आई डोंट थिंक दीज कंसेप्ट्स आर, most of you are from mathematical background also, and you can easily understand. Yes, Ajay Pratap. यस सर. कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर. यस, अभिनंदन, सक्षम, ईशदीप. बेटा कैमरा तो ऑन कर लो, सारा लेक्चर खत्म हो गया है. वी हैव गॉन थ्रू द फुल लेक्चर. Yes, so no, people are still hesitant to opening the game. ठीक है. एक लास्ट हमारे पास टॉपिक बचा है इसमें से, that is joining on index. So that we will do, how we can, the same concept is there, joining concept is there, and how we will perform it on the index, and tomorrow we will wind up this particular topic. बट इस टॉपिक में आप लोगों की क्लास में से 70% 80% लोगों को कंफ्यूजन होगा 101%. The only way to come out of the confusion is that if we perform the things a bit practically. फिर भी डाउट आती है, we are there in class. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि हर किसी को पहली बार में ही 100% आ जाना चाहिए, but if we are working consistently we can easily come out of this. And Navdeep has today made a good comeback, and इसने सारा कोड बताया how to convert the dictionary to a data frame. So that should be the our focus होना चाहिए कि अगर हम एक दिन आंसर नहीं कर रहे तो next day we should be able to make a comeback. ठीक है जी. So Ishdeep is coming here for the first day. So welcome Mr. Ishdeep. And so कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? कोई भी any question, related question है, you can ask, or otherwise I will wind up the class. Thank you, brother. Thank you, everyone. And I hope that you will practice these questions.